Welcome back, friend, and good morning to all of you. Now, in this session, we will going for our next question, that is the secondary and other function of the commercial banks. And the previous lecture we already completed the question, that is the primary function of the commercial bank, and also we complete that is the commercial banks in the previous lectures. In this session, we complete the secondary and other function of the commercial bank, and then the presence of the commercial banks in India, and then if the time is remains, then we will also going for the central bank and RBI, that is the Reserve Bank of India. First of all, we going for the main function, sorry, other functions of the commercial banks. The first one, that is the primary function, and it's already completed in the past. There are different five primary function of the commercial bank. The first one, that is the accept deposit. Second one, that is the providing credit facility, and the third one, that is the payment and withdrawal facility. Then credit creation, and the last one, that is the interbanking transaction. And the deposit are mainly of three types. The first one, that is a current account deposit, and second one, that is the saving account deposit, and the facility of recurring account, it is the also type of the saving deposit, and the last one and the third type, that is the fixed long term deposit. And now we will going for the our today's question, that is the secondary functions of the commercial banks. Yes, secondary and other functions of commercial banks. The banks also perform certain other function as a first one, that is the agency and utility service, and the second one, that is the provide various facilities with the changing times. Now, the agency and utility service are provided by the banks. Banks provide 1 minute, friends. Okay, a bank provides various utility and agent banking facility to its customers. यानी कि जो भी बैंक्स के कस्टमर है उन लोगों को बैंक अलग अलग यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है एज अ एजेंट. For example, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit. Please make underline letter of credit. Yes, providing letter of credit to exporter on behalf of the importer. तो फ्रेंड यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. लेकिन उसके पहले आप अपनी बुक्स के अंदर कॉमन पेज नंबर 38 और वहाँ पे अंडरलाइन कर दो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट. तो मैं आपको एक ब्लैंक पेज के अंदर समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, और आप अपनी बुक्स के अंदर भी देख सकते हो. फॉर एग्जांपल वहाँ से कि बैंक कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट बाय प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे बैंक जो वर्क कर रही है, दैट इज़ द प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट टू इम्पोर्टर. सॉरी फ्रेंड्स. ओके, टू एक्सपोर्टर. तो बैंक जो है उनका जो फर्स्ट वर्ड, दैट इज द प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्टर को, ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर. फ्रेंड, इम्पोर्टर यानी कि वो बंदा जो फॉरेन से कोई भी गुड्स एंड सर्विस को इम्पोर्ट कर रहा है, एंड एक्सपोर्टर यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या होगा. फ्रेंड, आपको पता होगा कि एक्सपोर्टर जो भी गुड्स एक्सपोर्ट करने वाला है इम्पोर्टर को, तो वो कब एक्सपोर्ट करेंगे. अब समझो कि इंपोर्टर पहले पेमेंट करे, उनके बाद ही एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकता है. लेकिन फ्रेंड, इंपोर्टर की साइड से अगर हम सोचे तो इंपोर्टर भी पहले पेमेंट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने पेमेंट कर दिया और हमें गुड्स को इंपोर्ट नहीं हुआ तो हमारे पैसे जाएंगे. और एक्सपोर्टर को ये डर है कि अगर समझो कि हम जो भी हमें गुड्स एक्सपोर्ट करने, अगर हम वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे और बाद में हमें अगर पैसे नहीं मिले तो हमारे गुड्स यहाँ पे जाएंगे.
तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, कि पहला काम पेमेंट का है वो भी वो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट का वो भी वो नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक का रोल इम्पोर्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि इम्पोर्टर की क्या क्रेडिट है, क्या उनकी ट्रांजेक्शन है, क्या उनकी एबिलिटी है, उनके लिए एक लेटर वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्सपोर्टर को। कि इम्पोर्टर की जो कैपेसिटी है कि आप उतने रुपीज़ तक उनको गुड्स प्रोवाइड कर सकते हो तो आपका पेमेंट मिल जाएगा। यानी कि एक हम बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड एक्सपोर्टर को बैंक सेंड कर देगी कि आप इंपोर्टर को इतने रुपीज़ तक की लिमिट में गुड्स सेंड कर सकते हो, उनकी उनकी कैपेसिटी है, उनकी उनकी क्रेडिट है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में वो शो कर रहा है कि इंपोर्टर की क्रेडिट क्या है कि वो पेमेंट कर सकेगा या नहीं। तो अगर समझो कि एक्सपोर्टर को उनके ऊपर फेथ हो, इंपोर्टर के ऊपर क्या पेमेंट कर देगा, कैपेसिटी है जो एलओसी में बताई लेटर ऑफ क्रेडिट में, उसी हिसाब से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब हम रिटर्न आ जाते हैं वहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विस। तो अंडर राइटिंग सर्विस की हमने बात करें फ्रेंड, तो जो हमने 11th में भी देख लिया था कि अंडर राइटिंग या तो हम एक नॉर्मल या तो हम बोल सकते हैं कि जनरली हम बोलते हैं कि दैट इज़ द गारंटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आप अंडर राइटिंग के नीचे अंडरलाइन कर दो। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चलन्स, यानी कि आप जो भी टैक्स पे करना चाहते हो बैंक थ्रू पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अंडरलाइन पे टैक्स चलन्स। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। तो यहाँ पे मेरे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नो अबाउट द डिपॉजिट वॉल्ट्स, यानी कि लॉकर की हम बात कर रहे हैं। ऑन रेंट टू इट्स कस्टमर व्हेन दे कैन सेफली स्टोर देयर प्रीशियस ज्वेलरी एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। बैंक प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्विस आ रही दैट इज़ द प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी। तो आप माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी के नीचे अंडरलाइन। एंड व्हेन सम पेमेंट्स आर टू बी मेड विद द फुल प्रूफ सिक्योरिटी बैंक्स प्रोवाइड सर्विस टू द पेयर बाय इश्यूइंग ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, यानी कि ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है लेटर ऑफ क्रेडिट फर्स्ट, सेकंड दैट इज़ द अंडर राइटिंग, थर्ड वन दैट इज़ द पे टैक्स चलन, and fourth one that is the safe deposit vaults, and then microfinance, and last one that is the draft और पे ऑर्डर। तो हमें अलग अलग जो 6 वर्ड है वही याद रखना है। फर्स्ट वन दैट इज़ द एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, सेकेंड वन दैट इज़ द अंडर राइटिंग सर्विस, एंड द थर्ड वन दैट इज़ द पे टैक्स चलन्स एंड डिपॉजिट सेफ डिपॉजिट वॉल्स, एंड द फिफ्थ वन माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी, एंड द लास्ट दैट इज़ द ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। तो ये अलग अलग जो भी सर्विस थी बैंक्स की एज अ एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विथ चेंजिंग टाइम्स, यानी कि जैसे ही टाइम समझो कि चेंज हो रहा है उस तरफ बैंक जो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी कोई चेंज तो जरूर होंगे। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक इज़ एन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। इवोल्यूशनरी यानी कि फ्रेंड बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। देर इज़ अ कंटिन्यूअस एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शन एक्टिविटीज़ एंड सर्विस ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक जो है उनकी एक्टिविटीज़ की हम बात करें या तो जो सर्विस है उनमें कुछ ना कुछ एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि कुछ इन्वेंशन होता रहता है। इन प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट ऑफ एनी अदर कस्टमर ऑफ एनी बैंक without using cash or check is done through facility like SNAP, that is the National Electronic Fund Transfer, and the second one that is the RTGS, that is the real time gross settlement, and both of these are possible because of the core banking यानी कि centralized online real time exchange। तो फ्रेंड हमें पता है कि अगर हमें कोई एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो कि ए का जो बैंक अकाउंट है वो इलाहाबाद बैंक अकाउंट में है, इलाहाबाद बैंक के अंदर, और बी का जो अकाउंट है दैट इज़ द BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब समझो कि ए का जो अकाउंट है वो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद प्लेस भी है, जो सिटी भी है, और बैंक का भी नाम है इलाहाबाद बैंक। तो अगर हमें इलाहाबाद बैंक के अकाउंट में से बी का जो अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप NEFT
या तो आरटीजीएस का यूज़ करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको कोई कैश या तो चेक का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यानी कि आपको कोई चेक भी लिखना नहीं पड़ेगा और हम बोल रहे हैं कि आपको कोई कैश में भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप नेफ्ट या तो बोल सकते हो फुल फॉर्म दैट इज़ द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एंड द सेकंड वन दैट इज़ द आरटीजीएस, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और दोनों यहाँ पे मेथड यूज़ कर सकते हो। और एंड वी ऑलरेडी learn about this point that is the NEFT and RTGS in the 11th OC subject that is the BA। एंड जो दोनों सिस्टम है यहाँ पे नेफ्ट एंड आरटीजीएस दोनों पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग दैट इज द सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। फ्रेंड यहाँ पे तो हमने 3 वर्ड जो अलग अलग कंप्लीट किए, दैट इज द फर्स्ट वन नेफ्ट, आरटीजीएस एंड द कोर। तो तीनों के फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ अबाउट द नेफ्ट, आरटीजीएस एंड कोर। तो तीनों के फुल फॉर्म आप याद रखोगे, वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक अंडरलाइन नेफ्ट, आरटीजीएस एंड कोर बैंकिंग। Besides, customer can get various details of their account as well as make a payments and buy good book tickets on their computer or mobile phone through internet banking and mobile banking ऐप। तो फ्रेंड हमें पता है कि अगर हमें कोई भी पेमेंट करना है तो भी हम पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, बाय गुड्स, यानी कोई भी हमें गुड्स को परचेस करना है, वी कैन बुक टिकट्स। तो अगर आपको कोई भी टिकट्स या तो बस की हो, प्लेन की हो, मूवी की हो, कोई भी टिकट्स आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या तो मोबाइल थ्रू इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप बुक कर सकते हो। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स एंड फैसिलिटी ऑफ डीमेट अकाउंट। तो मैंने आपको डीमेट अकाउंट 11th में भी समझाया था और आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स में तो आई थिंक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, लेकिन डीमेट के हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ। ओके, डीमेट अकाउंट की फ्रेंड हम बात करें तो डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि वहाँ पे आप जो भी शेयर है या तो डिबेंचर या तो बॉन्ड्स जो आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर। एंड जो हम पहले की बात करें कि ओल्ड टाइम के अंदर जो ये शेयर बॉन्ड्स या तो डिबेंचर जो फिजिकल फॉर्म में थे, यानी कि आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिल रहा था। लेकिन डीमेट अकाउंट जब से आ गया तो यहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत है नहीं, यानी कि आप डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि डीमेट अकाउंट में आप कोई भी शेयर बॉन्ड्स या तो डिबेंचर को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट की तरह ही है। डीमेट अकाउंट में भी 2 साइड्स होगी, वन दैट इज़ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर समझो कि हम शेयर परचेस कर रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, एंड अगर हम शेयर को सेल कर रहे हैं तो डेबिट होंगे। और अगर समझो कि डीमेट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कब होगा डीमेट अकाउंट की, जब आप परचेस करो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपका बैंक अकाउंट तब क्या होगा, डेबिट होगा। एंड जब आप शेयर को परचेस सेल कर रहे हो, यानी कि आपका डीमेट अकाउंट डेबिट होगा, तो आप सेल कर रहे हो पर तो आपको पेमेंट मिलेगा, यानी कि आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों के अकाउंट में उल्टी यहाँ पे वाइज वर्सा एंट्री हो रही है, अलग अलग एंट्री बन रही है। कम बैक। ओके, bank also provides safe deposit holds and facility of demat account, the dematerialized account, and this account where shares, debentures and bonds can be held in an electronic form which is easier than holding them in a physical form। तो यहाँ पे फ्रेंड सिंपली है पूरा प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विद द चेंजिंग टाइम। एंड द फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन दैट इज़ द एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। तो यहाँ पे हमने दोनों जो सेकेंडरी फंक्शन वो कंप्लीट कर दिए। एंड फ्रेंड मैं आपको 2 या तो 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ दोनों जो सेकेंडरी एंड सेकेंडरी फंक्शन है दोनों एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस एंड द प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विद द चेंजिंग टाइम्स, वो आप रीडिंग कर दो। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज़ कैरी ऑन।
Okay, friend, welcome back. The next question, that is the presence of commercial banks in India. तो कॉमर्शियल बैंक्स में आज प्रेजेंट कितनी बैंक है, या तो जो भी बैंक एस्टाब्लिश हुई हो, किस तरह बैंक एस्टाब्लिश हुई है, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट इन द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। यानी कि फ्रेंड, आज जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स है इंडिया के अंदर, वो पब्लिक या तो गवर्नमेंट की बैंक है एंड या तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट प्लेयर की बैंक है, जो जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, यानी कि प्राइवेट की बैंक है। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, एंड फ्रेंड, वी नोट दैट द economic policy of 1991, that is the LPG, liberalization, privatization and globalization. The foreign banks have entered in the private sector. Besides, there are financial companies which functions like banks in the unorganized and organized money markets of India. यानी कि फ्रेंड, हम मानते हैं कि इंडिया के अंदर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों सेक्टर की बैंक्स है। एंड ज़्यादातर हमें पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991, दैट इज़ द LPG, उस पॉलिसी की हम यहाँ पे बात करें तो उनके बाद जो LPG हुआ, यानी कि P यानी कि प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन होने से इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी बैंक आई और साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि फॉरेन बैंक की भी एंट्री हो गई। एंड besides, there are financial companies which function like bank in unorganized and organized money market। यानी कि हम इंडिया के मार्केट के अंदर बात करें तो ज़्यादातर जो भी फाइनेंशियल कंपनी है या तो जो बैंक्स है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो लाइक अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो फ्रेंड, हमें पता है कि इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी ज़्यादा है। And but by the official definition of bank in India, only those companies which are listed in second schedule of the RBI Act 1934 are established accordingly are called scheduled banks and are the real banks of India। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो ऑफिशियल डेफिनेशन है बैंक की इंडिया के अंदर, तो जो भी बैंक एस्टाब्लिश हुई है वो किस तरह एस्टाब्लिश होनी चाहिए, तो हम याद रखेंगे यहाँ पे कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934, यानी कि RBI एक्ट जो 1934 बना है उनके अंदर जो सेकेंड शेड्यूल है, उनके मुताबिक अगर उनके अकॉर्डिंगली कोई भी बैंक एस्टाब्लिश हो रही है तो उनको हम शेड्यूल बैंक या तो रियल बैंक बोल सकते हैं। एंड द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ RBI अप्लाई टू दिस बैंक्स। यानी कि जो बैंक सेकंड शेड्यूल के मुताबिक अकॉर्डिंगली एस्टाब्लिश हुई है, उसी बैंक को जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है RBI के, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेड्यूल बैंक की बात करें तो शेड्यूल बैंक्स मेनली डिवाइड इनटू टू, दैट इज़ द कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव में कोई यहाँ पे टाइप्स नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक की हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक, प्राइवेट सेक्टर की कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, या तो हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल बैंक्स है वो भी इंडिया में काम कर रही है। एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करूँ, चार्टर्ड बैंक। एंड द लास्ट वन, दैट इज़ द रीजनल रूरल बैंक, यानी कि RRB। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखना है कि RRB का फुल फॉर्म क्या होगा, रीजनल रूरल बैंक। फ्रेंड्स, रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो ग्रामीण, या तो हम बोल सकते हैं कि जो रूरल एरिया में जो भी बैंक्स है, दैट इज़ द रीजनल रूरल बैंक, यानी कि RRB की जो अर्बन एरिया में वो बैंक्स नहीं है, लेकिन विलेज जो एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे बैंक है। तो यहाँ पे जो हमने चार्ट देखा, दैट इज़ द शेड्यूल बैंक्स, उसके अंदर कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव, और कॉमर्शियल के अंदर अलग अलग चार टाइप्स। द फर्स्ट वन, दैट इज़ द public sector, private sector, and then multinational banks, that is the foreign banks, and last one, that is the RRB। एंड यहाँ तक फ्रेंड की हम बात करें तो यहाँ तक जो हमारा कॉमर्शियल बैंक्स का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। एंड नाउ वी गोइंग फॉर द another type of the bank, that is the classification of bank in the first one commercial and second that is the RBI, that is the Central Bank of India। And now we going for the RBI, that is the Central Bank of India। The next question, that is the central bank, and please you can come on page number 39।
सेंट्रल बैंक, देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फ्रेंड वर्ल्ड के अंदर जितनी कंट्री है सभी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक का एग्जिस्टेंस है। विच मैनेज, यानी कि सेंट्रल बैंक का यहाँ पे क्या काम है, तो सेंट्रल बैंक मैनेजेस एंड इवेल्युएट्स एंड द रेगुलेट्स द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री। यानी कि कंट्री के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उस सब कॉमर्शियल बैंक को मैनेज करना, उनको रेगुलेट करना किसका काम है, सेंट्रल बैंक का। बिकॉज sorry besides a central bank protects the interest and rights of the customers of a various bank एंड ऑफ द जनरल पब्लिक। यानी कि फ्रेंड सेंट्रल बैंक की हम बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो किसको प्रोटेक्ट करे, दैट इज़ द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कस्टमर ऑफ वेरियस बैंक एंड ऑफ द जनरल पब्लिक। और यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का नाम दिया है दैट इज़ द आरपी केंट। तो आरपी केंट ने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है सेंट्रल बैंक के लिए। तो आईएमपी भी है और आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दीजिए या तो आईएमपी लिख दीजिए बाजू में। The institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money in the interest of जनरल पब्लिक वेलफेयर। यानी कि फ्रेंड आरबीआई या तो हम सेंट्रल बैंक जो बोल सकते हो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक्सपांशन करना एंड कॉन्ट्रैक्शन करना किसका, वॉल्यूम ऑफ मनी, या तो हम बोल सकते हैं दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि आरपी कैंट ने जो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि जो सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चार्ज करता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ मनी यानी कि सप्लाई ऑफ मनी का में एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन करना। तो फ्रेंड सेंट्रल बैंक या तो आरबीआई किस तरह से सप्लाई ऑफ मनी का एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कर रही है वो हम मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर समझ लेंगे। यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर पूरे का पूरा ये पॉइंट समझना है कि हाउ टू द आरबीआई बैंक इज एक्सपांस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, जो हम मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर सीख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूँ। Hence, the central bank is the apex bank of country and whose function is to aid यानी कि हेल्प करना, रेगुलेट करना and promote the entire money market and banking sector as well as to maintain monetary and financial stability for overall economic good of nation। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि आरबीआई का जो एक फंक्शन और यहाँ पे हो रहा है दैट इज द स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करें यानी कि मार्केट को क्या रखना है, इकोनॉमी को हमें स्टेबल रखना है। तो स्टेबल किस तरह हम रखते हैं कि दैट इज द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी। अगर समझो कि मनी का जो सप्लाई या तो जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल। एंड अगर समझो कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी कि बहुत डिक्रीज हो रहा है तो फिर से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट स्टेबल। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी मनी का जो सप्लाई है वो ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा डिक्रीज भी होना नहीं चाहिए। यानी कि उनको स्टेबल रखना है कि सप्लाई ज़्यादा ना इंक्रीज हो या तो ना ज़्यादा डिक्रीज हो। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी हैज़ अ सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्प्लीकेशन विच इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। यानी कि फ्रेंड अगर हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन यानी कि मनी को ट्रांसफ़र करना है तो एक जगह से जो दूसरी जगह पर उनका इन्वेस्टमेंट करना, तो उनकी जो इफेक्ट है वो पूरे इकोनॉमी के अंदर होगी। और उनसे अगर हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं मनी का तो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट होगा किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। The responsibility of regulating monetary and financial transaction in a country and maintaining the value of the country's money currency rest with the central bank। यानी कि फ्रेंड जो भी हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं यानी कि आरबीआई जो भी पैसे का मैनेजमेंट या तो स्टेबिलिटी रख रहे हैं उससे क्या होगा कि जो कंट्री के जो वैल्यू करेंसी की जो मनी है या तो उनकी जो वैल्यू उनको मेंटेन कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अ सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी। और यहाँ पे जो मनी का स्टेबिलाइजेशन या तो स्टेबल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बना रहे, फॉर्मुलेट करे, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी।
And in short, a central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability. यानी कि सेंट्रल बैंक की यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमी को क्या रखना, स्टेबल रखना। एंड अगर समझो कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सजेशन की ज़रूरत है फॉर दी मॉनेटरी या तो फाइनेंशियल, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस या तो कुछ सजेशन प्रोवाइड करे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सेंट्रल बैंक का जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर दिया। एंड आपने यहाँ पे देखा कि ज़्यादातर जो वर्ड आ रहे हैं दैट इज़ द स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमी को हमें क्या रखना है, स्टेबल रखना है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो आपको पता है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ नॉन एज RBI, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडर द RBI Act 1934, please make underline, Reserve Bank of India Act 1934. The Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 with the private paid up capital rupees 5 crore, and RBI was mobilized on RBI was nationalized on January 1st, 1949। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको अलग अलग 1934 एंड 1949 के बारे में याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 RBI की एस्टाब्लिशमेंट हुई एज पर दी RBI एक्ट 1934। यानी कि RBI एक्ट जो 1934 था उनके मुताबिक RBI की एस्टाब्लिशमेंट हुई अप्रैल 1935 में। और पेडअप कैपिटल की हम बात करते हैं, इट इज़ द 5 करोड़। एंड RBI का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो 1 जनवरी 1949। तो फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज़ द नेशनलाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? तो आपको शायद एक और भी वर्ड्स आपने सुना होगा, दैट इज़ द प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में फ्रेंड क्या था कि जो कंपनी या तो कोई भी बिजनेस प्राइवेट के गवर्नमेंट के पास है, और जो भी बिजनेस गवर्नमेंट के पास है और हम किसको दे रहे हैं, दैट इज़ द प्राइवेट को दे रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन में उल्टा है कि जो बिजनेस ग्लोबलाइजेशन नहीं, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में थोड़ा उल्टा है कि जो प्राइवेट के पास जो भी बिजनेस है उन कौन ले रहा है, वो गवर्नमेंट। यानी कि पहले जिनकी ओनरशिप प्राइवेट के पास थे वो ओनरशिप किसके पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास। उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द नेशनलाइजेशन। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे पता था कि RBI जब एस्टाब्लिशमेंट हुआ दैट इज़ द 1935। प्राइवेट पेड अप कैपिटल, यानी कि RBI एस्टाब्लिशमेंट हुई उस टाइम वो प्राइवेट बैंक थी। अब उनका नेशनलाइज किया यानी कि वो गवर्नमेंट बन गई। इन विच ईयर, दैट इज़ 1949 1 जनवरी। RBI is the apex bank of India and which supervise and regulates the entire banking sector। तो फ्रेंड जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर उनको सुपरवाइज एंड रेगुलेट कौन कर रहा है, दैट इज़ द RBI। एंड वेल फॉर्मुलेट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी कौन फॉर्मुलेट कर रहा है, तो हम याद रखेंगे दैट इज़ द सेंट्रल बैंक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड अगर समझो कि क्वेश्चन पूछ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट कर रहा है, तो हमें याद रखना है कि RBI। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि MCQ ऐसे ही देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। MCQ दे सकते हैं कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, RBI एंड नन ऑफ द अबव। तो आप भूल से भी सेंट्रल गवर्नमेंट मत यहाँ पर टिक करना, याद रखना कि RBI इशूज़ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। और फ्रेंड आज के लेक्चर के अंदर हम इतना रख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फंक्शन है रिजर्व बैंक के उसमें मॉनेटरी फंक्शन और नॉन मॉनेटरी फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड बाय बाय।